Good morning. I am Anil Agrawal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there are various questions in mind of candidates about IDBI postgraduate diploma course in banking. So we will try to cover most of these questions, and still if some question remains in your mind, you can post in comment. I will cover in future videos. First thing, postgraduate diploma course in banking provides opportunity to learn banking from a formal institution of repute. So this is 1 year course. During this course, you learn so many things about banking, and for that you have to pay the fees, that is 3.5 lakhs. For that, bank is providing you the loan. Now the question comes whether this 1 year of postgraduate diploma course in banking is counted as service. Answer is no. Can you leave the course in between? Answer is yes. Whether everybody clears the exams held during postgraduate diploma course in banking, this will depend upon your performance. But since you are learning things, and if you learn the things effectively, naturally you will clear the exam. But nobody can guarantee that you will clear the exam. But it is not out of course. Whatever is taught in the course, that is asked, and that's why the most people clear the course. So whether bond will be applicable if you leave the course during 1 year? No. Bond period starts the moment you join as assistant manager in IDBI. And this joining will happen after completion of course, that is 1 year. Your service will be counted from the day you become assistant manager in IDBI. That means 3 year period will be counted from the day you become assistant manager in the bank. Now the next question is whether it is assured that they will take you as assistant manager. Answer is yes, because in the inbuilt scheme it is mentioned that all successful postgraduate diploma course candidates will be absorbed as assistant manager in IDBI. So this is indirectly a selection for assistant manager course post through a course. So the job is more or less assured. Then comes what is the salary. Salary is similar to public sector banks, rather better than some of the public sector banks, and perks are also better than them. IDBI participates in IBA settlements. So all these settlements are applicable on IDBI. So to that extent, you can't compare IDBI salary with any other private sector bank. If you have to compare the salary of IDBI, it is to be compared with public sector banks or old generation private sector banks like South Indian Bank, like Nainital Bank, like Federal Bank, where the scales of IBA are applicable. So this is not to be compared with the salary structure of SDFC Bank or ICICI Bank. This is sometimes misnomer. It is private, people start comparing with SDFC and ICICI Bank pay structure. These are the banks, those are either in public sector or private sector, but they follow the IBA guidelines. So here you should compare even in private sector. South Indian Bank is giving the scales. Nainital Bank is giving the scales. So similar is the pattern of IDBI, so you need not have confusion. Then what about promotions? This provides lot of promotion opportunities also because it is a growing bank. And now the health of the bank is very good. That's why they are incurring profit and they are progressing very well. Net NPA is now one of the lowest in the industry. So it is reasonably good bank, but still you have to take your own call. I am not saying you should apply, you should not apply. This is your call, but it is a opportunity. For the people, those are not getting the job in banking. This is a job where with less effort you can get clear because less number of people may be applying due to the cost, due to other factors that is bothering the people about the tag of private sector and so on. How to prepare for this examination? Already I am posting daily videos. You should follow that. Then I will be telling you
about 1 week schedule also for this. And I have given you 3 weapons. Good quality mock test. Mock test link is available in description and comment. Click the link, register, take annual plan along with banking sectional mock test. Apply coupon code AA03. Already officer level mock tests are there. Along with this, IDBI postgraduate diploma course mock test will also be available to you. Second is good quality current affair. For current affair, I have suggested you a link. Click the link. You will land up on an app. Download the app. After downloading the app, take 2022 plan, apply coupon code AA03, you will have 10% off. Read current affair from there. For banking economic awareness, I have given you a playlist. Watch 10 to 15 videos per day. Playlist link is also available in description. So all the 3 tools, links are available in description. Have these deadly weapons with you and go well with the examination. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग IDBI का नोटिफिकेशन आया. आपके बहुत सारे प्रश्न हैं दिमाग के अंदर, आप बार बार पूछ भी रहे हैं, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अधिकांश प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने की. पहला क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग क्या है? ये 1 साल का कोर्स है जिसके अंदर आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ाई कराई जाती है और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है. तो ये जो कोर्स पीरियड है ये आपका सर्विस पीरियड नहीं है. यू आर नॉट इन जॉब. ये सिर्फ एक पढ़ाई है. और इस पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बोर्डिंग लॉजिंग इसमें प्रोवाइड की जा रही है, कंट्री के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में है, 3.5 लाख रुपए प्लस GST आपका खर्चा है. ये आप अपने सोर्सेज से भी दे सकते हैं. अगर जिनके पास सोर्सेज नहीं है उसमें बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है. तो पहली चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब आप कोर्स कर रहे हैं आप नौकरी पर नहीं हैं, इसलिए नौकरी की बंदिशें यहाँ पर लागू नहीं होती हैं. जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होता है आप इमीडिएटली एज असिस्टेंट मैनेजर IDBI बैंक में नियुक्त हो जाते हैं और तब से आपकी सर्विस काउंट होती है. अब एक प्रश्न ये आता है कि सर क्या हम इसको बीच में क्विट कर सकते हैं? बिल्कुल क्विट कर सकते हैं. कोर्स को आप बीच में क्विट कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है. दूसरी बात यह है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर मान लो हम पास नहीं हुआ तो क्या होंगे? देखो, पास तो आपको होना है, जब कोर्स है तो पास करना है, पर पास करना इतना कठिन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें प्रश्न वही आने हैं जो वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं. तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो पास कर ही लेंगे, और जो हिस्टोरिकली ऑलमोस्ट अधिकांश लोग इसको पास करते हैं. जब आपने कोर्स को पास कर लिया, आपने नौकरी आपकी लग गई, यहाँ से आपका बॉन्ड का पीरियड स्टार्ट होगा. चाहे बॉन्ड एग्जीक्यूशन शुरू में हो रहा है पर लागू नहीं है, कोर्स के दौरान बॉन्ड लागू नहीं है. ये बड़ा क्लियर मैं आपको कर रहा हूँ. बॉन्ड शुरू होगा जिस दिन आपकी नौकरी शुरू होगी और वहाँ से 3 साल काउंट होंगे. ये जो 1 साल आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में लगाया ये काउंट नहीं होगा, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लिया तो मेरी सैलरी क्या है? ये तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है. सैलरी यहाँ पर स्केल्स हैं और स्केल उसी तरह के हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है. और पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्केल्स होते हैं वो IBA की सेटलमेंट के अनुसार होते हैं. तो यहाँ पर सैलरी कई पब्लिक सेक्टर बैंक से बेटर भी है, पर्क्स भी हैं, सैलरी भी है. तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं. वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर है, जैसे SDFC है, ICCI है, वहाँ कम तनख्वाह है, या तनख्वाह कम तो नहीं हो जाएगी. प्राइवेट सेक्टर का मतलब कम सैलरी नहीं होता है, ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए. आप प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, साउथ इंडियन बैंक है, IBA के स्केल्स हैं. फेडरल बैंक है, IBA के स्केल्स हैं. नैनीताल बैंक है, IBA के स्केल्स हैं. तो जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं वहाँ भी स्केल हैं, तो इसमें भी स्केल है. इसलिए ये टेंशन कि SDFC की तरह कम तनख्वाह हो जाएगी, और SDFC में हमें कई बार कन्फ्यूज़न है कि वहाँ तनख्वाह कम है, कहीं पोस्टों पे वहाँ अच्छी भी तनख्वाह, बट उससे कंपेयर मत करिए. वो अलग बैंक्स हैं, वो IBA का हिस्सा नहीं है. जो बैंक्स IBA का हिस्सा है उसमें IBA के स्केल्स हैं और वो चलते रहेंगे. और IDBI बैंक IBA की जो सेटलमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो सेटलमेंट होती है उसमें केवल सरकारी बैंक नहीं, उसमें प्राइवेट बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट सारे नहीं करते, कुछ करते हैं. तो जो करते हैं वो IBA से डिफाइंड स्केल ही पे करते हैं, उससे आप टेंशन मत लीजिए. फिर है प्रमोशन भी अच्छी है IDBI बैंक में. फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी है IDBI बैंक की.
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं आपको कह रहा हूँ कि आप जरूर अप्लाई करिए, डिसीजन आपने खुद लेना है। मैं आपको प्रो एंड कॉन्स बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमें सही बात नहीं पता होती, हमारे हाथ से निकल जाती है। तो इस चैनल का काम है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। तो जो सच है, जो सच्चाई है, वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। डिसीजन आपने लेना है, आपको जाना है नहीं जाना है, ये आपका फैसला है। तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए डेली हम वीडियो डाल रहे हैं। मॉर्निंग में मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ, उसको फॉलो करिए। 3 डेडली वेपन्स मैंने आपको बताए हैं, उनका इस्तेमाल करिए। पहला है अच्छी क्वालिटी का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया है। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान लेंगे, साथ में बैंकिंग सेक्शन मॉक टेस्ट लेंगे, कूपन कोड AA03 लगाएंगे, 10% ऑफ आ जाएगा। ऑलरेडी ऑफिसर लेवल के या बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, वो भी लेंगे, वो अप्लाई करें, वो आप यूज़ करेंगे। साथ में IDBI पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के भी आपको मॉक टेस्ट उसमें उसी प्लान में मिलेंगे, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा, करंट अफेयर की तैयारी के लिए भी अच्छा सोर्स मैंने आपको बता दिया। उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, 2022 का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड AA03 लगाएंगे, 10% ऑफ आ जाएगा, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बैंकिंग और जो आपकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस है, उसके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट दे दी है। 10 से 15 वीडियो रोज की आप देख लेंगे, वहाँ से आपका जो पेपर है जिसके अंदर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस करनी है, काफ़ी हद तक वो कवर हो जाएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न रह गए हैं, आप कमेंट कॉलम में डाल दें, हम वीडियोस में उसको कवर करेंगे। कोशिश हमारी ये है कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रख दें। डिसीजन आपने करना है। इसमें इस वीडियो से ना तो मैं आपको कह रहा हूँ अप्लाई करिए, ना मैं आपको कह रहा हूँ मत अप्लाई करिए। अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी लोग जो इस रास्ते से गए हैं IDBI बैंक में, खुश भी हैं, कुछ लोग खुश नहीं भी हैं, हर तरह के लोग हैं। और हर जॉब में ऐसा होता है, कोई खासकर इसमें जॉब में नहीं है, हर जॉब में ही ऐसा होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।